Hello students, in this video I'll explain you the prime factorization method to find out the square root. To find the square root there are two techniques. Number one is prime factorization method and the second one is the division method. Prime factorization and division method, these are two the simplest methods, right? Along with this, some other techniques are also there which I'll explain in my up next videos. You can watch those videos for the explanation of those techniques. So within this video I'll explain you the prime factorization method only. Okay, I have taken three examples. 3844, the square root of 5625 and the square root of 7056. So these are the square roots that we will calculate by prime factorization method. अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स 3844. Just you have to find out the prime factors, and it's very easy to find out the prime factors. First of all, you have to use the table of the smallest prime number, right, which is 2. After this, the bigger one, then even bigger one. So in this way you have to find the prime factors. सबसे पहले 2 प्राइम नंबर, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखेंगे, जो जो आप टेबल यूज़ करेंगे वो सारी टेबल्स प्राइम नंबर्स की होंगी. क्लियर? सो यूज़ द टेबल ऑफ 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, द टेबल ऑफ 2 इज़ 19922. okay, once again it is an even number, so it is divisible by I think 2. so 9, ये 6 और ये 1 हो जाएगा. अच्छा, 961, 9 इज़ द स्क्वायर रूट, सॉरी 900 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 30. 961 इट मीन्स 31. इसको डायरेक्टली 31 का टेबल लगेगा. आप इसको चेक करोगे 3 का टेबल, 3 का टेबल नहीं लग रहा है, 5 का टेबल, देन ट्राई द टेबल ऑफ 7, देन ट्राई द टेबल ऑफ 11. After this, try the table of 13. So it is not divisible by any of the prime numbers except 31. इसको सिर्फ 31 का टेबल लगेगा और वो भी 31 टाइम, because this is the square root of 961. तो 31 ज़ा 1. That's it. Now 3844 है, तो square root of 3844 is equals to, now 2 multiply by 2 multiply by 31 multiply by 31. तो आपको ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. तो जैसे ही आप ये प्राइम फैक्टर्स लिखोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं. अगर ग्रुप्स कंप्लीट बन गए, अच्छा 2 ग्रुप्स कौन से बनेंगे, 2 सेम नंबर्स. सी 31 and 31, दीज आर द 2 सेम नंबर्स. 2 and 2, दीज आर द सेम नंबर्स. तो मतलब आपके पास 2 ग्रुप्स बन गए, 1 is 2, सेकेंड 1 is 31. तो पहले 2 का ग्रुप बना एंड 31. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम. वट एवर द आंसर यू विल गेट, राइट, दैट विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ 3844. 31 into 2, आंसर इज 62. तो नाउ यू कैन राइट हियर, इसका आंसर होगा 62. द स्क्वायर रूट ऑफ 3844 इज इक्वल टू 62. I'm repeating the method again. Now see, first of all you have to find the prime factors, then multiply all these prime factors and then make the groups. You have to make a pair of 2 same numbers. 2 सेम नंबर्स का एक पेयर बनता है. तो जो जो पेयर बनेगा दैट यू हैव टू राइट डाउन. यहाँ पे 2 2 का पेयर बना तो 2 सेम लिख दिया. 31 31 का पेयर बना सो 31 सेम लिख दिया. And now 31 multiplied by 2, answer is 62. So square root of 3844 is 62. Let's take one more example. 7056. तो सबसे पहले 7056, इसके आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. This is an even number, so you will use the table of 2, right? तो 2 के टेबल I think 3528. Yes, once again it is an even number, you can use the table. 1764, once again you can use the table of 2 here. Okay,
सो 8, ये 8 और ये 2, हाँ यस, again it is an even number. You can use the table of 2 here. So 4, 4, then 1. Now it is an odd number. Now you cannot use the table of 2. After 2, next prime number is 3. So try the table of 3. क्या इसको 3 का टेबल लगेगा? You have to test the divisibility. See, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9. मतलब 9 को 3 का टेबल लग रहा है, इसका मतलब 441 को भी 3 का टेबल ज़रूर लगेगा. सो इसको 3 का टेबल. क्लियर? सो 1 4 7. वंस अगेन यू हैव टू यूज़ द टेबल ऑफ 3. क्यों? क्योंकि इसको 3 का टेबल लग रहा है. भले डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो, राइट. 7 plus 1 8, 8 plus 4 12. 12 को अगर 3 का टेबल लग रहा है, दैट मीन्स 147 को भी 3 का टेबल ज़रूर लगेगा. 49 जा, और यहाँ पे 7 7 जा, 7 1 जा. दिस इज इजी. ओके, नाउ 7056. देखो, अब ये 7056 इज इक्वल्स टू, अब ये जितने भी नंबर्स हैं जी, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, दीज आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स विच यू हैव टू राइट. अच्छा, आफ्टर राइटिंग डाउन ऑल दीज प्राइम नंबर्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेक द पेयर्स. जैसे यहाँ पे आपने पेयर्स बनाए, एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे भी पेयर्स बनाए. देखो 2 2 का पेयर बना, यहाँ पे भी 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया. सो पेयर कौन से बन गए? 2 then 2 then 3 then 7. 7 3s are 21. 21 into 2 42. 42 multiplied by 2 84. So what's your answer? 84 is the answer. Now here you can write here square root of 7056 is 84. This is the answer. Let's take one more example. This will much clarify your concept. Okay, so 5625. देखो 5625, इसके आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, प्राइम फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई द टेबल ऑफ 2. देखो 2 का टेबल तो नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ एन ऑड नंबर. सो नाउ टेक द टेबल ऑफ 3, राइट. अब देखो क्या इसको 3 का टेबल लग जाएगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं. 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18. 18 को 3 का टेबल लग रहा है. दैट मीन्स 5625 को भी 3 का टेबल ज़रूर लगेगा. और इसको 3 का टेबल लगाओ तो आई थिंक 1875. हाँ, यस. एंड नाउ वंस अगेन यूज़ द टेबल ऑफ 3. मैं क्यों 3 के बाद 3 का टेबल पहले चेक कर ले, लगेगा या नहीं लगेगा. तो 5 + 7, 7 + 5, आंसर इज़ 12. 12 + 8 आंसर हो गया 20. 20 + 1 21. अब 21 को 3 का टेबल लग रहा है. दैट मीन्स टू से 1875 को भी 3 का टेबल ज़रूर लगेगा. ये होगा 625. नाउ 625 को 3 का टेबल लग रहा है, चेक करते हैं. 6 + 2 8, 8 + 5 13. 13 को 3 का टेबल नहीं लग रहा है. दैट मीन्स 625 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. तो अब 5 का टेबल, 5 का टेबल 125 जा, 5 का टेबल 25, देन 25 को वंस अगेन 5 का टेबल 5 जा, 5 का टेबल 1 जा. डन. Okay, so these are the prime numbers, right, that you have to write. Okay, after this now 5625, you have to write down 5625 same is equals to, अब ये सारे नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं. These are the prime numbers, prime factors. तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स आपने लिख दिए. आफ्टर राइटिंग डाउन दीज प्राइम फैक्टर्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द पेयर्स. तो जिसमें भी पेयर्स कंप्लीट होते हैं, सिर्फ वही एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. देखो क्या इसमें पेयर्स कंप्लीट हैं. देखो 3 3 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, एंड यहाँ पे भी 5 5 का पेयर बन गया. दैट मीन्स टू से द पेयर्स आर कंप्लीट. और अगर पेयर्स कंप्लीट हैं तो इसका मतलब ये है कि यस, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे 3 का पेयर बना, 5 का भी और 5 का भी. जस्ट मल्टीप्लाई दीज वंस. 5 5s are 25. 25 into 3 75. So 75 is the answer. This is 75. Okay, now you can write down here. So your answer is 75. The square root of 5625 is 75. Okay,
Okay, thank you so much for watching this video. Thank you.